Hello friends, I am Dr. Manoj Kumar Sharma. Today I will be taking a very important topic of public administration theories, right. The question is theories of organizations, that is what we will be dealing. In theories of organizing, most important thing is how do I organize people. So, to understand that what are the theories of organization, the first thing that I will request you that you comprehend one basic thing, why do we require an organization, right. Let us try to think, there are n number of people, right, n number of people are there. And a work has to be done, we have to do some work. This work will also be having several components. Let's understand that the work is having components like W1, W2, W3, W4 and so on. Let's take 4 components only. If I now try to explain to you that what are these components and why we have differentiated them. So, comprehend one thing, एक चीज समझो, that work is always a more comprehensive thing. Let's say a public policy of health, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग की स्वास्थ्य नीति को आपने implement करना है, you want to implement it. So there will be various components. One will be pure admin of it, pure administration, correct. One will be related to financing, financial aspect. Because any policy will have its financial aspect, its administrative aspect, and then we will have components which will be pure implementation. Pure implementation. In health policies, what will be pure implementation? It can be vaccination program, it can be something else. If the policy is related to women health or elderly health, then you will require a lot of doctors. Who will be here? Doctors, lot of such people, nurses, paramedics, lot of people we will be requiring, correct. And then we may also be requiring support staff. ठीक है, वो भी चाहिए. You must have heard of nowadays the degree of hospital administration. तो कुल मिलाकर if I try to understand, ये नीति बनने की बात है. These are the things when we already are having a public policy. So now the question is how do I give? अभी बेसिक में बात करते हैं, ये काम इनमें कैसे बांट दूं? How do I give? If it is work everyone is trying to do W1, do you think they will be able to do it? No, not everyone may be able to do it. If I try to give them W2, will they be able to do it? No, not everyone. So it means the work component is something like this, where I need to understand what is required for this type of work. What is required means skill set क्या चाहिए. So a person may be very good at communication, may be able to convince people, that's possible. A person may be able to convince people. आपने इनको convince कर दिया, ठीक है, तो बढ़िया सेल्स कर सकते हो पॉलिसी को. वैक्सीनेशन में क्या है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम में कि आपने अदरवाइज लोग वैक्सीन से डर रहे हैं कि शुड वी गो फॉर दिस वैक्सीनेशन और नॉट. But if you are a good team who can convince people, who can find out that should we go for advertisement through posters or something else, maybe digital media nowadays. So वो सब तरह की सपोर्ट चाहिए, सबको सब काम नहीं दे सकते, right? A person, let's say, is good at communication. This is also, I will use C for it. This is also good for C. Then this is good for C, correct?
These are the people who are good at financing. This is also good at financing. This is also good at financing. These may be the people who may be having skills of administering and general organizing. These may be two specialists. These may be two specialists, or maybe more specialists. Let's say take them. And these may be, let's make more people. And these three, if I say, may be paramedics or support staff. Correct? So it means now in terms of organizing, I will have, one is communication people, one is administration people, one is support staff people, one is specialist people. Correct? This is how we have broken down. यही बेटा ऑर्गेनाइजिंग की बात है. तो ऑर्गेनाइजिंग में सवाल ये है कि ये हम पहचाने कैसे. अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन जनरली चार्ट बनाऊं तो कुछ इस तरह का बच्चों आपने बना हुआ देखा होगा. यू मस्ट हैव सीन इट लाइक दिस. इसे बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर या डिफरेंशिएशन, हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन ऑफ वर्क. ठीक है. कितनी मिनिस्ट्रीज हैं गवर्नमेंट में? यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज आर देयर. व्हाई दिस कॉन्सेप्ट इज देयर? दिस कॉन्सेप्ट इज देयर बिकॉज अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, जो हम बात कर रहे थे. बट वंस वी हैव स्टार्टेड गिविंग देम देयर स्पेशलिस्ट्स aspects that okay, these are administrators, these are something else, okay, support staff, these are specialist doctors, there may be some people in doctors also who may be good at pathology. So you will have differentiation further. तो बेटा कुछ चार्ट ऐसे बन जाता है, सबके फर्दर सब डिविजन्स हो जाते हैं, डॉक्टर्स के भी हो सकते हैं, आगे भी फर्दर सब डिविजन्स हो जाते हैं. अब इन लोगों को अगर हम यहाँ बिठा दें तो थिंग्स लुक स्ट्रीमलाइन्ड. ठीक है. इसकी थ्योरीज पढ़ रहे हैं. व्हाट वी आर स्टडीइंग द थ्योरीज दैट हाउ डू वी रीच कि ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 हायर स्पेशलाइजेशन लेवल हो या लॉन्गर चेन्स हो. ये सभी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाते हैं whenever we think that how do we go for organizing. क्योंकि अदरवाइज क्या होता है, you become a crowd. आप क्या बन जाते हो? एक भीड़ बन जाते हो. You become a crowd. मॉब तो नहीं, but you become just a group of people. A group of people till the time not very well organized in regard to their assignments and all, they will not be able to discharge their functions. ठीक है. एक कहानी सुनी होगी आपने कि भाई सबका काम किसी का काम नहीं. अगर आपने सबको कह दिया सब ये काम करिए तो everyone will just wait and they may be organized or oriented towards one job only. एक काम को सबने कर दिया और कुछ ऐसे काम है जो किसी ने भी नहीं करना चाहा. So that is the problem. That is why we have to achieve a sense of organizing. ठीक है. पुलिस की आपने ऑर्गेनाइजेशन देखा, DGP, then IGPs. In some states ADGPs also are there. उनमें भी जोन कर देते हैं. But then IGPs are there. Then DIGs are there. Then SSP and the cities which are urban areas, which are larger ones, we have commissionerate system also. You must have all observed them. उसको पढ़ने जा रहे हैं. That is what we are trying to understand. ठीक है. थियरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? कुछ थिंकर्स आएंगे. एक कहेगा प्योरली साइंस कर दीजिए, मेक इट प्योर साइंस. अदर में नॉट से दैट मेक इट प्योर साइंस. प्योर साइंस में भी 2-3 लोग तरह की बातें करेंगे. वन विल से ओके आई एम गिविंग यू दीज प्रिंसिपल्स. अदर वन मे नॉट डू दैट. अदर वन मे से ओके यू योरसेल्फ नीड टू डेवलप अ साइंस ऑफ वर्क. ठीक है. वो पढ़ रहे हैं हम. वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड थियरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. ऑर्गेनाइजिंग कैसे करनी चाहिए, हाउ द ऑर्गेनाइजेशन शुड लुक. एक कभी कभी सुनते होंगे ना, उस ऑर्गेनाइजेशन में वाइब्स अच्छी नहीं आती. ओके. डिससेटिस्फैक्शन है अमॉन्ग्स द पीपल.
ऐसा क्यों हो जाता है भाई? Why? In some organizations people feel very happy. Why it is so? So we will actually try to see our journey starting from F.W. Taylor and then we will take it to Chris Argyris. सिलेबस में देखोगे तो आपको बहुत सारे थिंकर्स नजर आ जाएंगे, ठीक है? F.W. Taylor नजर आएंगे, Weber you will see thinkers like Gulick, okay? Urwick, Lindahl Urwick, Luther Gulick, you will see Mary Parker Foley, you will meet Chester Irving Bernard, you will meet Herbert Simon, correct? And then you will come to participative management. So it means we will start from one extreme and then finally we will go to the other extreme, that is of that how the people shall be organized. ठीक है बेटा? See, the examples of public administration will always be taken from governance aspect. मार्क्स हमेशा कब मिलते हैं पबैड में? ज़्यादा. एक तो बात हो गई, किसी ने लिख दिया साइंटिफिक मैनेजमेंट इज लाइक दिस, बट व्हेन दे आस्क यू दैट इन कंटेम्परेरी टाइम्स डू यू स्टिल थिंक दैट Frederick Winslow Taylor is still valid? So we will be actually taking up some examples and then we will be moving with it. Fine, I am starting with F.W. Taylor in organizing. तो बेसिक समझ में आया? सबसे पहले हम क्या बात करने जा रहे हैं? What we are talking? We are talking about organizing approaches. कैसे कैसे करें? अलग अलग होंगी, कोई किसी भी बात को कोई कहता इस तरह से करना चाहिए. दो ओरिएंटेशंस पकड़िए आसान समझने के लिए. प्योरली साइंटिफिक, ठीक है, से पार्टिसिपेटिव. यहां पर डायरेक्शंस कैसे जाएंगे? थोड़ा सा ह्यूमन फैक्टर होगा या नहीं होगा? यहां नहीं होगा. सो व्हाट इज मिसिंग इज माइनस इज, इफ आई से व्हाट इज माइनस? ह्यूमन एस्पेक्ट, ठीक है, यहां माइनस होगा. बस वही चीज वहां जुड़ती है पार्टिसिपेटिव में. ऐसा नहीं कि मैं ऑर्गेनाइजेशन को कभी उसको बलि दे दूंगा. नो, आई विल नेवर सेक्रीफाइस माय ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स. दे आर टू बी देयर, बट ओनली थिंग दैट आई विल बी डूइंग इज आई विल ऑल्सो बी कंसिडरेट अबाउट द ह्यूमन फैक्टर बिकॉज दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. करेक्ट? तो पार्टिसिपेटिव में क्या हो जाएगा? एडिशन होता है ह्यूमन फैक्टर का. इसका मतलब भाई जो हम प्योरली साइंटिफिक थियरीज पढ़ेंगे ये भी काम आएंगी. अगर इसको मैं ए मान लूं और ह्यूमन फैक्टर को बी मान लूं तो नया ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच जो है वो है ए प्लस बी गिव्स अस सक्सेस. ए प्लस बी गिव्स अस सक्सेस, ठीक है. सो व्हाट वी आर स्टार्टिंग नाउ इज F.W. Taylor. अब टेक्निकली पढ़ते हैं, ठीक है. एक तो बात समझ में आ गई कि हम पढ़ क्या रहे हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्सन होम F.W. Taylor. ठीक है साहब, इनके बारे में कुछ बताता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग सी है. एक व्यक्ति जिससे बहुत कम दिखाई देता है, right? A person is a mechanical engineer, but later turned almost scent blind. बहुत कम दिखाई पड़ता था. Started understanding the problems of organization. We are in 1890s. कब का समय है? 1890s के decade का. We are in 1890s and that person firstly identified that how do we give wages to the people. कभी आप तो खैर नई जनरेशन के बच्चे हैं, लेकिन कभी घर में पूछिएगा या आपने कभी देखा हो तो एक चीज़ होती है भाई दिहाड़ी पे मजदूरी, है ना. यू गिव अ डेली वेज रेट, और उससे कहीं आपने वाइट वॉश कराई हो, पेंट कराया हो घर में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी डेली कोर्स
रहते हैं जिनको हम कराते हैं। नाउ द थिंग इज, आपने कभी एल्डरली लोगों को परेशान भी देखा होगा, ये काम नहीं करता है, बीड़ी पीता रहता है बैठा हुआ। सो व्हाई शुड आई बी वरीड अबाउट इट? व्हाट इज ही डूइंग? आई शुड पे हिम फॉर वर्क, नॉट फॉर द टाइम। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? टेलर साहब ने ये समझा कि व्हाट डू आई पे, व्हाट डू आई पे फॉर? टाइम के पैसे दूं, वेदर ऑफ टाइम, तो टाइम तो भाई कोई आदमी ऑफिस में ऐसे बैठ के भी पास कर सकता है, मे बी जस्ट चिजलिंग विद द वर्क, slowing down the process. So that will harm more. Instead of helping out the thing, why not we give him or her for work? हमने फैक्ट्री में वर्कर बुलाए क्यों हैं? किसी काम के लिए। So if I give them for that work, क्योंकि आए तो लोग ऑर्गेनाइजेशन में किसी वर्क के लिए ही हैं, so why not I pay them for work? काम के लिए पैसे देता हूं। And this actually can be somewhere seen as piece rate. ठीक है? Piece rate system, टेलर साहब का पहला पेपर। So it's not that he immediately gave the idea of scientific management, but initially he gave the idea of piece rate. 1895 का पेपर, फर्स्ट पेपर ऑफ F.W. टेलर। क्या है? पीस रेट सिस्टम। ठीक है साहब? American Association of Mechanical Engineers, an association of mechanical engineers in America, he presented this paper there. ये पेपर इन्होंने वहां प्रेजेंट किया। He presented this paper there. That actually we all engineers, that at that time engineers bit were in most of the companies were even owners. Engineers, that is owners oblique senior management, actually are making a big mistake. Everyone in the seminar was stunned that what this gentleman Taylor is going to tell us. How are we all somewhere making an error? इतने लोग कैसे गलती कर सकते हैं? Then he said, we are paying them on the basis of time. ठीक है बेटा, आपने सुना भी होगा टाइम कीपर, किसी भी कपड़ा मिल में या कहीं एनी मिल, any factory you will talk about, you will actually think of that there are some people who provide the service to that organization of keeping the time. अच्छा भाई, इसकी 8:05 पे एंट्री है, इसकी इस टाइम एंट्री है, ठीक है? तो उसमें आपने टाइम नोट किया कि व्यक्ति किस टाइम से किस टाइम तक रहा, 9 to 5 ऑर्गेनाइजेशन में रहा, करेक्ट? तो आपने उसको टाइम पर डे उस दिन का कह दिया। ओके, डेट्स हो गई 1 2 3 4 5 6, ऐसे एक वीक का आपने सपोज पेमेंट करना है, वीकली पेमेंट। वेजेस जनरली पहले वीकली पेमेंट ही हो जाया करती थी, सैलरीज मंथली होती हैं, वीकली पेमेंट करना है। संडे को मान लेते हैं ऑफ है, ओके, इट्स एन ऑफ डे, सो इट मीन्स फॉर 6 days आई हैव टू मेक द पेमेंट। अगर ये उस दिन की अटेंडेंस आपने 9 to 5 लगाई हुई है फर्स्ट की, कि टाइम कीपर ने टाइम दिया 9 to 5, 15 मिनट आप छोड़ते हैं, जनरली यू गिव दैट, सो 9 to 5, 9 to 5, 9 to 5, 9 to 5, 9 to 5. So 6 days payment, whatever the payment is. Suppose the payment was at that time, let's consider, was $1. So the person will get at the end of that week $6 US, ठीक है? $6 USD उसको मिल जाते थे।
टेलर सेड आपका पेमेंट गया ये एक पक्की बात है, बट वेदर दैट वर्क पर्सन कॉन्ट्रीब्यूटेड ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा। अब उन्होंने एक और खास बात कही, he told one more thing. He said that see, there is a person, let's say John, okay, and there is another person, let's take Jack. In terms of efficiency, John is less efficient than Jack. ठीक है, काम करते वक्त जॉन जो है एक दिन में लेट से 6 पीसेस बना देता है, पेंट शॉप में 6 पीसेस को रंग कर देता है, 6 पीसेस, ठीक है, और जैक 9 पीसेस को करता है। सो पैसे दोनों को बराबर मिल रहे हैं। So don't you think ultimately Jack will also lose motivation and will feel why to work more, काम क्यों ज़्यादा करना जब मुझे पैसे उतने ही मिलेंगे। So in piece rate system he also talked of an idea, पेपर का नाम क्या है, what is the name of paper, piece rate system। इसमें एक और चीज उन्होंने कही, डिफरेंशियल पीस रेट। डिफरेंशियल पीस रेट, डिफरेंशियल पीस रेट का मतलब यह है कि जो ज़्यादा एफिशिएंट है, अगर पर पीस मान लीजिए मैं 10 सेंट्स देता हूं, ठीक है, एक पीस के 10 सेंट देता हूं, तो अगर कोई कम पीस बनाएगा तो एज अ पनिशमेंट आई विल बी गिविंग हिम 8 सेंट्स पर पीस इंस्टेड ऑफ 10। सो द पर्सन विल नॉट हैव द फीलिंग दैट क्या फर्क पड़ता है, काम मैं तो कम ही करता हूं, बट व्हेन इट विल बी डिफरेंशियल पीस रेट द पर्सन विल फील कि अब मेरा रेट भी कम हो गया है। एट वॉट रेट आई एम गेटिंग मनी, दैट रेट ऑल्सो हैज बीन रिड्यूस्ड। सो and we'll see Jack, who earlier was getting at 10, now is getting at 11 cents or 12 cents. तो उसको क्या लगेगा बेटा कि यार ये तो गैप ज़्यादा हो गया। अब ये नहीं है कि जैक काम ज़्यादा कर रहा है, जैक की क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी इंप्रूव कर गया है। ओके, सो जॉन विल ऑल्सो बी मोटिवेटेड। गेटिंग द आइडिया चिल्ड्रन? सो व्हेन वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, ये अभी उन्होंने कोई थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग नहीं बनाई, लेकिन हाँ इतना बताया सबसे पहले एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द पीपल शुड बी पेड इफ दे आर टू वर्क एफिशिएंटली इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब एक वर्ड दिमाग में डाल लीजिए, एफिशिएंसी वर्ड टेलर के दिमाग में आ गया। 1890s में हैं, अभी तक लोग यही सोच रहे थे कि लेट्स क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स हैव अ टीम, एंड इफ आई एम एबल टू गिव देम एन ऑफिस, एन ऑर्गेनाइजेशन, अ फैक्ट्री, दे विल बी वर्किंग। टेलर ने कहा ऐसा नहीं है, इट्स नॉट सो कि वो पक्का ही काम करेंगे। हो सकता है 100 में से 20 लोग सोते ही हों, and we all have seen how our PSUs suffered, okay, because of overcrowding of employees। ठीक है, राइट साइजिंग बाद में एक वर्ड आया हमारे PSUs में। तो इट मीन्स ये भी जरूरी है दैट एवरीवन इज प्रोवाइडेड विद राइट क्वांटम ऑफ वर्क, राइट क्वांटिटी ऑफ वर्क एंड राइट टाइप ऑफ वर्क। ये धीमे धीमे आगे बढ़ेगा। किसको क्या काम दूं, अभी टेलर ने नहीं समझा। अभी टेलर ने सिर्फ एक बात कही दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो भी हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। इसमें सबसे पहले बात जो भाई मुझे समझ में आई है वो ये आई है कि यार आप घंटों के पैसे दे रहे हो, यू आर नॉट प्रोवाइडिंग देम
You are not providing them money for the work which they are accomplishing, rather you are providing them money only for the reason that they come to the organization. ठीक है, कहते भी है ना हम कि अरे सर ये तो कुछ तो चाटुकार हो सकते हैं. Those who just keep buttering the top management, they still will continue rising. वो नहीं होना चाहिए. We are paying for the work क्योंकि ultimately organization move करेगा. So बेटा first piece rate system, I will dictate you notes, don't worry. पहले समझ लीजिए what is this particular idea, then I will dictate you all the notes. You all will be getting the notes, okay? You will not have to write anything from any book or somewhere. I will dictate you notes considering the examples where you can put them also. So basic theory I will provide you, concepts, principles, and also I will provide you the examples. Can I use it in any scheme of the government? Okay? ठीक है. So मानधन से कहीं पर भी, किसी भी स्कीम में, कर्मयोगी में, कहीं पर भी आप लगा सकते हैं कि we will actually come to that, but later. पहले थोड़ा सा समझते हैं. तो साहब ये तो आपकी समझ में आ गया कि टेलर किस तरह से सोचते हैं. His approach is slightly scientific for those times. लोगों ने सोचना नहीं शुरू किया है. All are just worried. Employer सोचता है कि एक बार ले आइए लोगों को, बाकी तो मैं कोड़े लगाकर, I will whip them, I will beat them, I will cane them, I will stick them. ये सब होता था. All those things were there. Correct? ये वही अमेरिका है where in 1860s they were able to abolish the slavery by bringing an slavery abolition act. ठीक है, अब्राहम लिंकन को तो आप सब जानते ही हैं भाई, क्यों इतने पॉपुलर हैं वो, बिकॉज ही थॉट ऑफ एन आइडिया. ये वही देश है. दे कीप प्रीचिंग टू एवरीवन यू शुड बी लाइक दिस. Okay, but they themselves were not taking care of their people, and they only thought that only capital is the real thing. Purchase machinery by this capital, purchase land by this capital, and then you can find people who will work, right? And some people may be there who may try to organize and they may not give the real picture to the top management. That is always possible. ये व्यक्ति उस बात को समझ गए. सो F.W. टेलर अब अगला कदम बढ़ाते हैं. सो फर्स्ट वॉज पीस रेट सिस्टम. यू गॉट इट? डोंट पे. सो व्हाट इज पीस रेट सिस्टम? इफ आई ट्राई टू अंडरस्टैंड पीस रेट सिस्टम की कुछ खास बातें क्या हैं? डू नॉट पे फॉर टाइम स्पेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. इसको क्रॉस कर दिया. डू नॉट पे फॉर दिस. ओके, व्हाट यू शुड पे? व्हाट शुड यू पे फॉर? द वर्क डन. जो काम किया उसके लिए दो. फॉर दैट यू शुड पे. पीस रेट की एक खास बात है. अब इसमें क्या होगा? डिफरेंशियल पीस रेट किस लिए लाएंगे? नंबर ऑफ एक्सेप्टेबल पीसेस यू हैव प्रोड्यूस्ड. काम करने के लिए कभी पेंट कराया होगा आपने, और ये सुना होगा किसी घर में किसी को बोलते हुए कि तुमने यार ये अच्छे से नहीं किया, दिस पीस ऑफ वॉल हैज़ नॉट बीन डन प्रॉपरली. ठीक है, तो ये तब होगा जब हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया काम. तो ये भी इंपॉर्टेंट है दैट वर्क डन शुड बी of acceptable quality. If work done is not of acceptable quality, no point of doing work. Correct? किसी को आपने you just hired a cook, और वो कुक जो है ऐसी आपके लिए दाल बनाए या ऐसी चपातीज बनाए जो आपको अच्छी नहीं लग रही, ना देखने में अच्छी लग रही है और ना टेस्ट में अच्छी लग रही है. सो they are not acceptable. They are not acceptable quality. So acceptable quality of work need to be paid.
ओके देखो इन कुछ टर्म्स से कहीं ना कहीं ये भी लगने लगेगा, तो आप कहेंगे सर ऐसे व्यक्ति की जो यूनियन वाले लोग होंगे वो तारीफ करेंगे या अगेंस्ट हो जाएंगे? ट्राई टू थिंक ऑफ, व्हाट डू यू थिंक? ऑफ कोर्स दे विल बी अगेंस्ट, because they will say you are giving too much power to the managers, as if they want to harass someone, if they want to exploit some workers, they will keep finding faults with their quality of work. Correct? क्योंकि यहाँ acceptable work के parameters भी फिर define होने चाहिए. What will be acceptable work and what will not be. That also should be defined. Anyway, basic समझे, pay for the work done, piece rate system, पर पीस हम एक रेट बना देंगे, उसके हिसाब से पे करिए. और दूसरी चीज इसमें जो हमने पढ़ी है वो क्या है? डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम. पीपल in order to be motivated should be given a reward for doing more work, more acceptable pieces production, because the organization will grow then. Clear sir? ये दिमाग टेलर साहब के दिमाग में ये बात आ गई. ये पेपर बेटा पीछे जाता हूं वापस, ये कब का पेपर था? पीस रेट सिस्टम 1895. कब का पेपर है? 1895. नोट्स में एक साथ लिखा दूंगा, दीज वर द पेपर्स प्रायर टू हिज थियरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. ठीक है, व्हेन वी विल अंडरस्टैंड. अभी आप पहली थियरी समझ रहे हैं, तो समझिए हम समझ क्या रहे हैं. यू विल नेवर एंजॉय स्टडीइंग इफ यू डू नॉट नो व्हाट वी आर गोइंग थ्रू. करेक्ट? देखो भाई, जो डॉक्टर्स आप में से होंगे, यू कैन नॉट चेंज एनाटमी ऑफ ह्यूमन बींग्स, राइट? तो आपको तो फिक्स्ड एनाटमी पढ़ाई जाएगी, उसमें बोन्स अलग से पढ़ोगे आप, ठीक है, टिश्यूज अलग से पढ़ोगे, मसल्स अलग से पढ़ोगे. डॉक्टर्स ने दिया भी होगा आपने कि लोअर लिम्ब अलग से पढ़ लिया, अपर लिम्ब अलग से पढ़ा, थॉरेक्स अलग से पढ़ा, दिस इज हाउ, हेड एंड नेक अलग से पढ़ा. ऑल ऑफ यू मस्ट हैव स्टडीड इट लाइक दिस. ठीक है, क्योंकि वहां पर ये ऑप्शन नहीं है कि मैं 5 डिफरेंशिएशन कर दूं कि अरे यार हाथ 4 होते तो अच्छा रहता, ओके, और डिजाइन कर देता हूं. दैट्स नॉट पॉसिबल. वो फिक्स्ड पढ़ते हैं. उसके बाद देखते हैं कि अब इनकी क्योर कैसे करें. यहां हम ये भी पढ़ रहे हैं कि वी कैन चेंज द एनाटमी ऑल्सो. फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग तो बाद में चेंज कर ही लेंगे, पहले एनाटमी एस्पेक्ट है, फिर तो हम फिजियोलॉजिकल फंक्शन चेंज कर लेंगे. तो यहां आप सब कुछ चेंज कर सकते हो. दैट इज वाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट. इसीलिए इसके आंसर्स भी लिखने में बेटा आपको बहुत आसानी रहेगा. इट विल बी वेरी इजी बिकॉज यू कैन ऑलवेज सजेस्ट थिंग्स विच यू गो थ्रू some important articles or what we all will be talking about right in the class. ठीक है साहब? अब अगले पेपर की तरफ मैं जा रहा हूं जी. अगला पेपर का नाम बेटा उन्होंने ये कब आया? शॉप मैनेजमेंट. शॉप मैनेजमेंट. ये शॉप कोई किराना स्टोर नहीं है. इट्स नॉट अ किराना दुकान, रादर इट इज वर्कशॉप. वर्कशॉप, ठीक है. कैसी शॉप्स हो सकती है वर्कशॉप? प्रेस शॉप. जो इंजीनियर्स हैं या जिन्होंने काम किया हुआ है उन्हें पता होगा. वन विल बी प्रेस शॉप. वन कैन बी मोल्डिंग शॉप. One can be paint shop. One can be assembly shop और assembly line. Shop मतलब जहां पर assembly line होगी. ठीक है साहब? तो ये अलग अलग आपने देखा कि ये इतनी सारी होंगी. प्रेस शॉप पहली बार आप सुन रहे हैं बेटा. बड़ी बड़ी स्टील की चादरें आई, ओके, स्टील शीट्स, लार्ज वन, where you actually cut
you bring a press, metal press, and you cut the desired size and of shape, उसे प्रेस शॉप बोलते हैं, ठीक है। बड़ा आसान एग्जाम्पल, स्टील के बर्तन बनते हुए देखें, स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स देखा है, नहीं देखा है, अच्छा आपने देखा हुआ है, नो वरीज। स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स में वो शेप देखा होगा ना आपने, लार्ज बाउल, स्मॉलर बाउल, तो वो प्रेस कर देते हैं उससे, वो पहले से ही ऑलरेडी उसका शेप बना हुआ है, स्टील रखा, प्रेस कर दिया, उसी शेप में आ जाता है। यहाँ हम बड़ी बड़ी शीट्स की बात कर रहे थे एट दैट टाइम, कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट में चेंज नहीं है। तो प्रेस शॉप, he saw that there is lot of wastages in the press shop. क्यों है साहब वेस्टेज, सोच कर देखते हैं। लेट्स एंटर अ प्रेस शॉप, मान लेते हैं ये स्टेनलेस स्टील की शीट है, स्टेनलेस स्टील नहीं, स्टील की मान लेते हैं, स्टील की शीट है। अब किसी को उस दिन प्रोडक्शन लाइन में इस तरह का मेटल का शेप चाहिए, तो अब अगर सोच के मैं देखूं, अगर इसमें से दो निकलेंगे तो ये सारा एरिया बेटा जो है, जो भी शेडेड एरिया है, इट विल एक्चुअली बी वेस्टेड, right? It will be wasted. So he started thinking about it. अभी आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स इससे अगला पेपर है, 3 साल बाद ही आ जाएगा 1906 में। लेकिन हाँ, ये बात टेलर को नजर आने लगी और उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रही है, लॉट ऑफ वेस्टेजेस आर देयर, वहाँ बहुत सारी चीज़ें वेस्ट होती हैं। और कोई भी वेस्टेज क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए एंट्रोपी होती है। एनी वेस्टेज इज अ नेगेटिव एनर्जी, वो नुकसान करेगी आपका, बिकॉज ये सब स्क्रैप में चला जाएगा। सो यू परचेज्ड अ मेटल शीट फॉर अ डिफरेंट रेट ऑफ प्राइस एंड यू आर थ्रोइंग द स्क्रैप ऑफ कोर्स एट अ वेरी लेस रेट। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि ये जो व्यक्ति है इसने सोचना तो शुरू कर दिया। अब इसने एक और चीज़ पकड़ी, इस व्यक्ति ने कहा अपने दूसरे पेपर में, शॉप मैनेजमेंट, कब का पेपर है ये, 1903, और किसको कहा, द सेम अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, उनके एनुअल मीटिंग में इस व्यक्ति ने अपना पेपर रखा। अब यहां बड़ी इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। ही टोल्ड हियर दैट सी वी ऑल आर सफरिंग फ्रॉम रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट। जब भी ये वर्ड पेपर में देखो, इट इज हैपनिंग टू द बोर्ड, रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट, ठीक है। हमारा जो उत्पादकता है, रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्टिविटी, रेस्ट्रिक्टेड उत्पादन, सीमित उत्पादकता, रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट इज द रियल प्रॉब्लम। मैनेजर्स थिंक, कभी इस चीज को सोचिएगा, वर्कर्स और ये अगर आपको लगेंगे तो एक दूसरे के उल्टे लगेंगे कि इनमें कभी भी कोई दोस्ती हो नहीं सकती। वाई? इनके बीच में हमेशा कैसे रिलेशंस रहेंगे, स्ट्रेन्ड रिलेशंस रहेंगे। किस लिए? मैनेजर्स विल फील कि वर्कर्स काम नहीं करना चाहते या नहीं करते हैं, while workers will feel that managers do not want to actually give us our share. So both will have strained relations. Taylor said the reason for all these strained relations and the real problem of management is that you think that because the term worker start with W, which is reverse of M, so they will also be always against you. He said no. बोथ पीपल एंटर ऑफ कंपनी, दोनों ही जब
इस कंपनी में एंटर करते हैं, सपोज ये कंपनी का गेट है यहाँ पर, जब मैनेजर भी जाएगा और वर्कर भी जाएगा, तो यहाँ पर ये इसलिए नहीं जाते हैं कि वो आपस में लड़ाई करेंगे, नो, इट्स नॉट दैट फील्ड, एंड दे डू नॉट हैव एनी कॉम्पिटिटिव आइडिया बिटवीन देम। टोटली डिफरेंट फील्ड है, टोटली डिफरेंट डोमेन है। तो जब आपस में कोई प्रतिस्पर्धा है ही नहीं, किस बात का झगड़ा? झगड़ा इस बात का है, मैनेजर्स को लगता है ये हमेशा अपनी बोनस मांगेंगे, वेजेस बढ़ाने की, दे विल ऑलवेज कीप टॉकिंग ऑफ गिव अस बोनस, गिव अस मोर वेजेस, वी आर पेड लेस, एंड मैनेजर्स थिंक दैट इफ वी विल पे देम मोर, then ultimately what will be left with us? So he said, because you are producing less, and why you are producing less? Why we are producing less? Lot of wastages are there, correct? So the reason is restricted output is due to bad organizing. बात धीमे धीमे बढ़ने लगी ऑर्गेनाइजिंग की तरफ, ओके, शनै शनै धीमे धीमे वी आर एक्चुअली मूविंग टूवर्ड्स हाउ टू ऑर्गेनाइज। क्लियर? अब ऑर्गेनाइजिंग की तरफ धीमे धीमे बढ़ रहे हैं। तो पहले इसने कहा कि देखो भाई, आपका रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट है, यू हैव रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट, एंड दैट इज द रियल प्रॉब्लम, दैट यू आर नॉट एक्चुअली एबल टू सेटिस्फाई द वर्कर्स, एंड यू योरसेल्फ आल्सो आर नॉट वेरी सेटिस्फाइड। क्या काम करो? इंक्रीज द आउटपुट। हाउ डू आई इंक्रीज द आउटपुट? सो सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम तो रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट आ गई, अब जरा RX लिख दें एक डॉक्टर की तरह। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज इंक्रीज द आउटपुट कैसे होगा? जैसे डॉक्टर से पूछते साहब तबीयत कैसे ठीक होगी, अब वो दवाई लिख रहा है, बाय ऑर्गेनाइजिंग वर्क ऑन साइंटिफिक बेसिस। ठीक है? जो आपका वर्क है, डू अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क। इस वर्क की साइंटिफिक स्टडी कीजिए। यू नीड टू डू साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क। इफ यू विल बी स्टडीइंग वर्क on a scientific manner, then ultimately you will find that the work which is being carried out will be also more vector in its approach. देखो efforts लग रहे हैं, if I say efforts का एक मैप बनाते हैं, efforts लग रहे हैं, ठीक है? एक एफर्ट लगा इस डायरेक्शन में, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। अब इनका रिजल्टेंट निकालेंगे आप। तो बेटा ये तो नेगेटिव हो गया, ये तो आपस में अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम था ये तो कट गए आपस में। ये एडिशन आया, ये जुड़ेंगे, ये इनको दूसरी डायरेक्शन में ले जाएगा, तो आप जाहिर बात है माइनस होगा। सो अल्टीमेटली द नेट वर्क, the net resultant that you get out is always less. So you need to increase, what you need to do? You need to increase the number of right vectors. और right vectors कैसे मिलेंगे आपको? Right direction vectors. अब ये राइट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स कैसे आएंगे? थ्रू अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क। एक और बात कही इस पेपर में, क्योंकि सवाल ये भी होगा, क्या वर्कर्स अपने डोमेन में इतने सक्षम हैं? आर दे सो मच कैपेबल इन देयर डोमेन दैट दे विल मेक अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क? वाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, ये सुने हैं ना टर्म्स? ब्लू कॉलर जॉब, वाइट कॉलर जॉब, गुड, सब सुना हुआ है।
क्या होता है ये व्हाइट कलर, ब्लू कॉलर? ब्लू कलर के कपड़े किस लिए? कि भाई वहाँ शॉप फ्लोर पे जाएंगे तो जाहिर बात है कुछ गंदगी लग जाएगी. एंड व्हाइट कॉलर मीन्स दैट यू आर एक्चुअली प्योरली इन एडमिनिस्ट्रेशन. एंड व्हेन सो यू विल नॉट विजिट. जरा सोच कर देखिए, आप बैठते हैं अलग एक बिल्डिंग में अपनी, वहाँ से मैनेजमेंट के सिर्फ डायरेक्टिव्स भेजते हैं, और जो वर्कर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में दूसरी जगह बैठते हैं, मतलब काम करते हैं. सो दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग अलग है. बोथ आर समवेयर डिफरेंट. सो व्हेन बोथ आर समवेयर डिफरेंट एंड दे आर नॉट वर्किंग इन द सेम गोल और फॉर द सेम गोल, अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन? क्लैशेस रहेंगे. सो ही सेड मैनेजर्स, ये मान लीजिए शॉप फ्लोर्स हैं, शॉप फ्लोर 1, शॉप फ्लोर 2, शॉप फ्लोर 3, शॉप फ्लोर 4, जो अलग अलग शॉप्स हैं. तो मैनेजर्स should often visit shop floors. इन्होंने शॉप से लिखा था. यहां मैनेजर को जाना चाहिए. जब वो खुद जाएगा तो देखेगा. एंड विल स्टडी नंबर ऑफ थिंग्स. यहां टेलर साहब ने एक और टर्म यूज किया बेटा, आपने सुना होगा, टाइम एंड मोशन स्टडीज. ये यहां पे जा क्यों रहा है? ये जा रहा है टाइम एंड मोशन स्टडीज करने. ओके, कितने मूवमेंट करता है ये व्यक्ति कि अपना काम पूरा कर ले. तो अगर वेस्टेजेस हैं तो उन्हें हटा देते हैं. दैट वॉज द बेसिक आइडिया. कुछ ऐसे एफर्ट्स तो नहीं वेस्ट हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में जिनसे कोई आपको उत्पादन नहीं मिल रहा है. वेदर वी आर एक्चुअली डिस्चार्जिंग सम ऑफ द फंक्शंस फॉर द सेक बिकॉज वी वर टोल्ड टू डू देम लाइक दिस. सो हियर इन दिस पेपर ही टॉक्ड दैट you cannot work on the basis of heuristics. Organization shall not work on the basis of heuristics. ठीक है, क्रॉस कर दिया. Rather shall work on the basis of true science of work. किस पे काम करे? True science of work. ठीक है, इसके बेसिस पे काम करे, इस पे नहीं, इस पे काम करे. Got it? So ये इनका सेकंड पेपर. एक और इसमें बात कहेंगे, sharing of responsibility. Managers and workers both shall share responsibility for good work done as well as if work could not be accomplished. Both shall be working. Both shall be taking responsibility for that. Correct? अब बेटा इसके बाद थर्ड पेपर आ गया. वो उसके बाद हम साइंटिफिक मैनेजमेंट पे पहुंच जाएंगे. दैट इज वेयर वी विल रीच. सो थर्ड पेपर, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स. आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स. इसमें क्या कहा उन्होंने? टू डू एफिशिएंट वर्क, योर टूल्स एंड प्लानिंग ऑल्सो नीड टू बी एफिशिएंट. To do efficient work, क्या क्या efficient होना चाहिए? Your tools as well as planning should be efficient. जब तक ये efficient नहीं होंगी, your work will never become efficient till that time. Understanding?
you will not be finding yourself becoming efficient till the time you actually are achieving it. Any doubts? Clear till here? क्योंकि अब इसका मतलब इस व्यक्ति के दिमाग में, टेलर साहब के दिमाग में एक पूरा खाका तैयार हो गया. ही इज हैविंग एन आइडिया कि भाई मैंने क्या अपना बनाना है. एंड देन ही कम्स, जस्ट अ मिनट, इसका ईयर क्या था आर्ट ऑफ क्विटिंग मेटल्स का? 1906. ठीक है. अब ये अपना प्रिंसिपल दे देंगे जिसकी हमने बात शुरू की थी. क्या बता देंगे? ये सुनिए, आई एम गिविंग द आइडिया ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड व्हाट इट इज, ये ध्यान रखना, ये टर्म जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज नॉट कॉइन्ड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर. वैसे अब प्री में ये सब्जेक्ट है नहीं तो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं. अर्लियर दे यूज्ड टू कम. द टर्म वाज कॉइन्ड बाय लुइस ब्रेंडिस. अलग व्यक्ति हैं. बट रियली हु डेवलप्ड, हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? इट इज एफ.डब्ल्यू. टेलर हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. ठीक है. सो scientific management, he said, can be comprehended just in the following principles. First, develop a true science of work. ठीक है. Develop a true science of work. दूसरा क्या काम करना है? Select the worker on scientific basis. Select and train the worker on scientific basis. Scientific basis. Board is not working properly. Somewhere I am writing, it is missing. Anyway, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है. Develop a true science of work. First principle. Second is select and train the worker on scientific basis. ठीक है. इसके बाद bring together. अगर इनको मैं ABCD मान लूँ तो ये A, B, तो C एक्टिविटी क्या है? Bring together A plus C means bring together true science of work and scientifically selected and trained worker. और D क्या है बेटा? Share the responsibility. ठीक है साहब? Share the responsibility. देखो बेटा, when you actually approach at honors level, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट, you actually need to know the terminology and idea should be very clear in your mind. कि टेलर क्या खराब आदमी था? was he against workers? No. Though American Union of Workers talked about, and all the unions, let it be in anywhere, any state, बहुत सारी स्टेट्स है अमेरिका में, 50, तो कम से कम 30-32 स्टेट्स में बड़ा ज़बरदस्त क्रिटिसिज्म हुआ टेलर का. बट इफ़ आई आस्क यू, कुछ बुरी बात कही है अभी तक? कुछ भी खराब नहीं कहा. बट सम पीपल विल से इट गेव डायबॉलिकल पावर टू द मैनेजर्स बिकॉज मैनेजर्स वर देयर टू डिसाइड दैट व्हाट विल बी द डिफरेंशियल पीस रेट, व्हाट विल बी द पीस रेट, एंड वर्कर्स विल नॉट नो व्हाट दे विल बी गेटिंग एट द एंड ऑफ द डे. टेलर ने इस सोचकर नहीं किया. ही ओनली सेड कि दोनों ही सफ़र कर रहे हैं, बोथ आर सफरिंग, मैनेजर्स आर ऑल्सो सफरिंग, वर्कर्स आर ऑल्सो सफरिंग. और जो ज़्यादा कैपेसिटी में रहता है, फाइनल कैपेसिटी में, उसके पास हमेशा शक्ति होती है. मैनेजर कैन ऑलवेज आस्क दैट वर्कर इफ़ यू वांट टू वर्क, अगर मेरा प्रॉफिट कम हुआ तो मैं क्या कहूँगा? वर्कर इफ़ यू वांट टू वर्क एट लेसर वेजेस देन वर्क, अदरवाइज गेट लॉस्ट. तो ऐसी प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए. लेट अस प्रोड्यूस मोर.
So he developed an idea of this. Tools क्या क्या आए? The tools which we studied, time and motion studies, स्टॉप वॉच लेकर एक्टिविटी को देखो. आप बच्चे भी तो करते हो. मेंस की आंसर राइटिंग आप कैसे करोगे? प्रीलिम्स में भी सीसेट के पेपर में आपने किया होगा. ओके, हाउ मेनी क्वेश्चंस आई एम एबल टू डू ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, ओके, इन दिस मच टाइम. कुछ बच्चे जनरली 45 मिनट्स, कुछ 50 मिनट्स असाइन कर लेते हैं कॉम्प्रिहेंशन को. एंड तो वो उन्होंने कैसे किया? ऑन सम बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, करेक्ट. फिर बाकी टाइम अलॉट कर देते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग इन चीज़ों को. ये भी तो वही कह रहा है, बस ये कह रहा है कि स्टॉप वॉच लेके जाइए, देखिए किसी एक्टिविटी में कितनी देर लगती है. मान लीजिए कोई व्यक्ति पेंट कर रहा है, अ पर्सन इज पेंटिंग अ पर्टिकुलर पीस that will go finally in the assembly shop. So let's see in 1 hour how many pieces he is actually painting, he or she is painting, correct? So time studies. And what will be motion studies? कि आपको कितना मोशन लगते हैं, कितने काम करने पड़ते हैं आपको, how many movements, hand movements you take while carrying out a work, right? क्योंकि सब में समय जाएगा और सब में क्या जाएगा? आपकी एनर्जी भी जाएगी, फटीग भी तो डेवलप होगा. मोर मूवमेंट्स इन द वर्क मीन्स विल लीड टू फटीग, थकान हो जाएगी. सो व्हेन आई स्टडी, बड़ा साइंटिफिक लग रहा है ये, अदरवाइज समझो तो बड़ा आसान है. वो पूछेंगे क्या भाई हमें साइंटिफिक होना चाहिए, तो आपको पहली स्लाइड जो हम बात कर रहे थे वो दिमाग में आएगी. दिस स्लाइड कि ये तो रहेगा ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल्स जो भी डेवलप होंगे इस पूरे रास्ते में, लंबी जर्नी है, ठीक है. इसमें बहुत सारे स्टेशंस आएंगे, माइलस्टोन 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, एंड देन फाइनली यू विल रीच दिस माइलस्टोन, ओके. लेकिन इन माइलस्टोन्स में ऐसा नहीं होगा कि हम ये कहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन तो कैसे भी बना लो, ultimately if you care for people you will be successful. No, it's not so. You will only say that organization also should be prepared well, and also we should take care of human factor. Fine friends, so this is the introduction to the idea of scientific management. Questions किस तरह के आते हैं ये ध्यान रखिए, मैंने इशारा देना शुरू कर दिया. क्रिटिसिज्म ही आएगा बेटा, दो तरह से पूछेगा. If I really want to test your knowledge, how will I ask you? I will ask you, यार ये तो बड़ा ही गलत आदमी था टेलर. This person actually talked about that don't pay workers on the basis of कितने घंटे रहे. वो बेचारा अनस्किल्ड आदमी है, आपके यहाँ बैठा रहा सुबह से शाम तक, और आपने कहा भैया मेरी तो एक्सेप्टेबल क्वालिटी नहीं मिली, यू हैव नॉट गिवन मी एनी एक्सेप्टेबल क्वालिटी ऑफ वर्क, जाओ जाए. सोच कर देखिए, पुलिस थाने में, ट्राई टू थिंक, एनी वो सैलरीड जॉब्स हैं, पुलिस थाने में, इन अ पुलिस स्टेशन, इफ वी से दैट इफ पुलिसिंग विल बी एट फॉल्ट, योर सैलरीज विल बी डिडक्टेड और विल नॉट बी पेड. अगर उनको पीस रेट पे ले आए, एवरीवन विल से नो नो इट इज़ अनफेयर. आईएएस को भी कहते हैं कि यार तुम्हारी स्कीम तो अच्छे से डेवलप इंप्लीमेंट नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ तो प्रॉब्लम्स है, तो एक काम करते हैं तुम्हारा प्रमोशन भी या सैलरी भी रोक लेते हैं. Will it help? No. But children, the job of an IAS, the job of a policeman is having hundreds of components. So it is very difficult to establish. And that is why we give them a salary. एक monthly कर दिया, काम बहुत सारे उनसे हम कराते रहते हैं, right? But here, when I see एक organization में जहाँ specified work है कि तुमने paint करना है, तुमने cut करना है, so there these things are possible. Okay, so जब आंसर लिखेंगे आप तो always keep in mind that this person was not thinking only of the good of the management, rather he was actually talking of the idea that restricted output is here, that's why the problems are there. Fine. Okay, so now we will go in detail, okay, after some time for the next discussion where we start understanding
or we will write notes that how do we actually prepare an answer. UPSC पहले notes बनाएंगे, फिर एक दो answers practice कर लेंगे. Clear friends?